Okay, let's see the second question, that is 4.1 second. Where is the question? This one. Check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not. Okay, this is what we have to check. So see, what you are going to do in this question, you can take any part. देखो अगर मैं इसका ना first part लेता हूँ, n plus 5 equal to 19 and within bracket we are given with n equal to 1. Okay, so let's see this one. n plus 5 n plus 5 is equal to 19 and we are given in the bracket then that n is equal to 1. Okay, this is what we are given with. So just see this left hand side of the question. If I will put n equal to 1 here, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, so 1 plus 5 it will be 6. ये तो 6 आ रहे हैं, दैट इज नॉट इक्वल, ये RHS के इक्वल नहीं है. सो दैट मीन्स व्हाट, n इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन n इक्वल टू 1 नहीं है. सी एक और क्वेश्चन देखो, इसमें से ना कोई एक पार्ट देखते हैं. सर बी पार्ट सर. ओके, बी पार्ट यू आर सीइंग. ई सर. ओके, ई पार्ट. यस सर. ओके, 4p minus 3 equal to 13 and p is equal to minus 4. Okay, so it is given 4p minus 3 is equal to 13 and p is given as what, minus 4. Okay, now just you will again take the left hand side, you will put the value of p की जगह क्या पुट करेंगे इस बार, minus 4, and then we are having minus 3. So 4 4 ja 16, that means minus 16 minus 3. So how much we are getting, minus minus plus, it will be minus 19. Again see, it is not equal to the right hand side part. Right hand side part के equal नहीं है ये भी. So that means here also we are not getting the solution. Okay, तो इसमें भी हम लिखेंगे no. Yes, Let's see this one also. 4p minus 3 is equal to 13 and p is given as 0. So we will be taking here, देखो 4p minus it is 3 equals to 13 and p is given as 0. p क्या है, 0. So p की जगह पे हम 0 पुट करेंगे. So 4 multiply by 0 minus 3. Left hand side we are taking. So it will be 4 into 0, 0 minus 3, and 0 minus 3 is minus 3. Again it is not equal to the RHS. So that means this time also no, not a solution. P equal to 0 is not a solution. So this will be, this you will be doing. एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले सबको. हाँ, now we can see. Angles Q and R of a triangle PQ are 25 degree and 65. Which of the following is true? Actually it is not about first, second, third part. These all three parts are given. We have to check which part among these are true. इनमें से कौन सा part true है. Okay, suppose you are given with this triangle, one is 25 degree, one angle is 25, other one is 65. That means by using the angle sum property, see, if I am drawing this triangle, मैं यहाँ पे एक triangle draw करता हूँ same. Suppose this is the triangle I am taking and this one. Okay, now I am naming it similar to that one, PQR. So it will be, this will be P, this will be Q, this will be R. This angle is given as 65 degree, this angle is given as 25 degree. So that means what, now I can easily find out this one. ये angle मैं बहुत easily अब find out कर सकता हूँ. How I can find this angle, कैसे find out करूँगा, by using angle sum property. Angle sum property of a triangle. Property of a triangle. we can add the so both angle sum property, angles, sir? according to angle sum property, angle P plus angle Q Sir. plus angle R will be equal to what, it will be 180. Okay, so that means angle P plus 25 plus 65 will be equal to 180, and angle 180. P plus 25 plus 65, it is 90, equal to 180. So that means angle P will be 180 minus 90. Okay, so angle P is how much? Sir, Angle P is 90 degree. Okay, so that means this angle is 90 degree. 90 And you degree. know,
द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. सो इन पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में होता है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. सम ऑफ स्क्वायर्स of other two sides. Okay, so it will be, what is the hypotenuse we are having? See, hypotenuse we are having that is opposite to this 90, and opposite to 90 is which side? That is QR. So QR square will be equal to PR square and plus PQ square. So this is our answer. So out of these three parts that are given in the question, we will see that which part is having QR square equal to PR square plus PQ square. So I will see here, it is this one, second part. You can see QR square is equal to PR square plus PQ square. एक बार यहाँ पे चेक करो. See, अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं ना, इंटीजर्स में जब हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तब हम देखते हैं लार्जर नंबर साइन. लार्जर नंबर साइन दैट मीन्स जो बड़ा नंबर होगा ना उसका साइन हम लगाते हैं. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? देखो, इफ वी आर हैविंग टू इंटीजर्स, 2 × 3 बोथ आर पॉजिटिव, दैट मीन्स आंसर विल बी पॉजिटिव. दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव इट विल बी पॉजिटिव. Then if we are having -3 × 4 means one integer is negative, one is positive, so answer will be -12. Why? Because minus plus it will be minus. Then if we are having first one as 7 × -5, then again we will be having -35 because plus minus again we are having minus. And then if we are having -6 × -4, both are minus na, so answer will be positive 24. Because both are minus we will take plus. So these are the things you have to remember. About addition और subtraction ना, देखो addition और subtraction में क्या होता है? If we are having 3 + 4, that means देखो दोनों प्लस हैं, answer will be 7. If we are having 3 - 4, answer will be -1. Because why -1? Because 4 is greater and 4 is having negative sign. So that means we have to see the larger number. जो greater number है ना उसका sign हम लोग यहाँ पे लगाते हैं. But if we are having 7 - 5, that means who is negative now? 5. But it is smaller na, so 7 - 5 we will write 2. We will not take -2. If we are having -3 - 4, both are negative, that means answer will be 7 but -7 because higher the number we have to put the sign. जो नंबर बड़ा है उसका साइन पुट करना है. Okay, I'll just delete this thing. Now we can see the next question, that is okay 1.3 question number 3. See, for any integer a, what is -1 × a equals to? देखो बहुत सिंपल है. अगर हम किसी भी इंटीजर को, इफ़ वी आर मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर बाय -1 × a, it will be what? It will be -a. This will be our answer. कैसे आया आंसर? कैसे आया? देखो, अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, मैं सपोज a की जगह पे ना कोई भी इंटीजर लेता रहूंगा, -1 की जगह पे 4 लूंगा तो आंसर क्या आएगा? -4. ठीक है. -1 × अगर मैं 3 करता हूँ तो -3, -1 × 2 करता हूँ तो आंसर क्या आएगा? -2. मीन्स a की जगह हम कुछ भी लें, हमारा आंसर क्या आ रहा है? माइनस और a. एंड वी कैन डू, देखो अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, -1 × -5, then what will be our answer? Minus minus cancel, it will be +5. Okay, -1 × -4, what will be our answer? +4. So that means what? If we are multiplying -1 with the integer, we will be having what? Either -a or +a. या तो हमारे पास -a आएगा या +a. कैसे आएगा? -a कब आएगा? When we are taking positive integer. और +a कब आएगा? When we are taking माइनस इंटीजर इन प्लेस ऑफ a. पार्ट है ना वो सिंपल है. उसमें देखो अगर हम a की जगह नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर रख रहे हैं तो हमारा a जो आएगा माइनस में आंसर आएगा. अगर हम a की जगह नेगेटिव इंटीजर रख रहे हैं तो हमारा +a आंसर आएगा. चलो देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है. सेकंड पार्ट है
Determine the integer whose product with -1 is -22. ये कह रहा है कौन सा ऐसा इंटीजर है जिसका प्रोडक्ट हम -1 से करेंगे और आंसर हमारा -22 आएगा. दैट मीन्स देखो, इफ आई एम हैविंग हियर -1, what number I will be multiplying with it to get -22. -1 से मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि -22 आंसर आए. सो आई हैव टू मल्टीप्लाई 22. यस, दैट मीन्स आई विल बी मल्टीप्लाइंग 22. सेकेंड पार्ट इज इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई -1 को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट आवर आंसर विल बी +37. दिस टाइम वी विल बी मल्टीप्लाइंग विद -37. Okay, so this is what you will be doing. So let's see this one also. I'll delete this thing. Okay, the first second question. See, second question what we are having, convert the given decimal fraction to percentage. इनमें से किसी भी एक पार्ट को ले लो, हम उसको convert करेंगे into percentage. Suppose we are given with 0.65. I will convert this one first. I am given with 0.65 and I have to convert it into percentage. So first I will remove the decimal. पहले मैं decimal remove करूँगा. See, after the decimal how many digits we are having? 2. So I will be taking it 65 divided by 100. Why 100? Because after the decimal we are having 2 digits. Now we can convert it into percent. अब percent में convert करते हैं किसी भी चीज़ को तो multiply करते हैं 100 से. Now 100 to 100 cancel, it will be 65%. That is our answer. One more part you can see. एक और part देख लेते हैं. Suppose we are given with 12.35. Okay. या फिर ये वाला 0.02. Okay. If we are given with 0.02, so 0.02, it will be what? Again after the decimal we are having 2 digits. So it will be 02 divided by 100. वैसे 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले 0 को भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि नंबर से पहले 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है. Then multiply it with 100. Okay, so it will be cancel out. 2%, so sir. it will be 2%. That is our answer. So this is how we will be converting. Okay, let's see the last part of the question. That is 12.35. So what is there? It is 12.35. Again we are having 2 digits, so it will be 1235 divided by 100 multiply by 100. So 20 cancel out, it will be 1235%. 1235%. So that is our answer. Let's see. If we are given with percentage, na, see 150% we are given with and we have to convert this one into decimal and fraction. So 150 percentage sign remove करके हम क्या लिख सकते हैं upon 100. So now 0 to 0 cancel. See, now we are having 15 by 10. 15 by 10. 1 0 I am having in the denominator. So can I write this thing as 1.5? Because decimal लगा सकते हैं हम after this one digit. एक digit के बाद इधर यहाँ पे decimal लगा दिया मैंने. So it will be 1.5. So that is how we can convert this thing into decimal. Now if we have to convert it into fraction, अगर fraction में करना है, so 150%. Again I will be taking 150 divided by 100. 0 to 0 cancel. 5 to the 10. 5 3 ja. So how much I am getting? 3 by 2. So this is what I am getting in fraction. This is what I am getting in decimal. See one more time. एक बार मैं इसको delete कर देता हूँ पहले पूरा. देखो, अगर हमारे पास कुछ भी परसेंटेज में दिया हुआ है, सपोज वी आर गिवन विद 20% एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो आई विल बी टेकिंग 20 डिवाइडेड बाय 100, देन 0 to 0 कैंसिल, सो इट विल बी हाउ मच? 0.2. वाई? बिकॉज वी आर हैविंग 1 0, सो आई विल पुट माई डेसिमल आफ्टर काउंटिंग द 1 digit. सो 1 digit काउंट करने के बाद डेसिमल पुट करूँगा मैं. Suppose we are given with 2% only, so what I will be taking 2 by 100. Now I will be putting my decimal after two digits. So 1 I will be taking 2. देखो इस वाली 0 के लिए मैंने 2 लिखा, लेकिन अभी एक 0 बची. We are not having any digit, so I will put 0. So it will be 0.02. This is how you will be converting into decimals. Okay, and if you have to convert in fraction, अगर fraction में convert करना है तो you will be taking 2 divided by 100, so 2 1 ja, 2 5 ja, so it will be 1 by 50. This is you will be converting into fraction. Okay, suppose we are given with 135%, so what we will be taking?
135 divided by 100, so it will be 2 zeros are there ना, so I will be taking इस जीरो के लिए मैं 5 को यूज कर लूँगा, इस जीरो के लिए 3, so answer will be 1.35. This is in decimal, but if we have to convert it into a fraction, so it will be 135 divided by 100, so 5 2 ja 10 0, then 5 2 ja 10 5 7 ja, so it will be 27 by 20. This is in fraction, this is in decimal. Okay, let's see 8.1 third question, what is given there. Okay, this is the question. Population of two states are given, Rajasthan and UP. For Rajasthan it is 570 and it is for UP it is 1660. So we will write here population of राजस्थान की जो पॉपुलेशन है दैट इज 570 lakh, and population of UP is how much? It is 1660 lakh. Then the question is saying area of Rajasthan is 3 lakh kilometer square and area of UP is 2 lakh kilometer square. So we will write the area also. This is population. If we will write the area, that is 3 lakh kilometer square and area of UP is 2 lakh kilometer square. Okay, this is what we are given with. So now what the question is asking, how many people are there per kilometer square in both these states? Now just see one thing. This is the total area of Rajasthan. In this total area, how many people are living? 570 lakh. So in 3 lakh kilometer square, 3 lakh kilometer square में कितने लोग रहते हैं? 570 lakh. If I will find for 1 kilometer square, अगर मैं 1 kilometer square की बात करूँगा, so it will be 570 lakh divided by 3 lakh. So that means it will be 3 1 ja, 3 1 ja, 3 9 ja 27 and 0. So it will be 190. That means in 1 kilometer square, 1 kilometer square में कितने लोग रहते हैं राजस्थान में? इन राजस्थान 1 किलोमीटर में 190 लोग रहते हैं, ठीक है. और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में देखो 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 1660. 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं 1660. तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहेंगे? लाख, यहाँ पे लाख भी है साथ में, ठीक है. तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1660 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख. तो दैट मीन्स आई विल कैंसिल इट. सो इट विल बी 2 1 जा, 2 8 जा 16, 2 3 जा. सो 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 830 पीपल आर लिविंग. इसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190, इसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग इन द सेकेंड पार्ट, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड? कौन से स्टेट की पॉपुलेशन कम है? सो यू कैन सी दिस थिंग, राजस्थान की ही है वो. So you can just answer this one very easily, that Rajasthan is having less population. Let's see this question. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? देखो ये क्या कहता है, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है. फ्रीजिंग प्रोसेस में उसमें क्या हो रहा है? What is there? In this freezing process, the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius per hour. देखो 1 आवर में ना, विदिन 1 आवर कितना प्रोसेस जो है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस होता चला जाता है. कैसे? मतलब देखो, अगर स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, सपोज इन स्टार्टिंग 20 था, तो आफ्टर 1 आवर के बाद वो कितना हो जाएगा? 15 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद 1 आवर के बाद वो कितना हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स आफ्टर एवरी आवर कितना माइनस होता जा रहा है? -5. ओके, तो विदिन 1 आवर, 1 आवर में कितना होता है? -5 होता है. तो ये कह रहा है 10 आवर्स में कितना हो जाएगा? तो विदिन 10 आवर्स में कितना माइनस हो जाएगा? इट विल बी -5 × 10. सो कितना होगा? -50
डिग्री सेल्सियस इतना कम होगा। अब देखो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था 40, और 40 में से कितना माइनस करना पड़ेगा अब 50, सो इट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 10 hours, after 10 -10 hours degree it will be Celsius. 40 minus 50, so that means it will be minus 10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो कितना था 40 डिग्री सेल्सियस, 1 आवर के बाद कितना हुआ 35, सेकेंड आवर के बाद कितना हुआ 30, थर्ड आवर के बाद कितना हुआ 25, फोर्थ आवर के बाद 20, फिफ्थ आवर के बाद कितना होएगा 15, सिक्स्थ आवर के बाद 10, सेवन्थ आवर के बाद 5, 8 आवर के बाद 0, 9 आवर के बाद -5, 10 आवर के बाद -10, सो आफ्टर 10 आवर्स इट विल बी -10। दिस इज आवर आंसर। सुकृति समझ आया? हाउ डू वी यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, लेट अस सी दिस थिंग, वही सीखते हैं पहले। सो द क्वेश्चन वी आर हैविंग दैट इज 5p प्लस what is given there 2 equal to 17, 5p plus 2, okay, this is the thing we are given 5p plus 2 equal to 17 and we have to solve it by trial and error। तो बेटा ट्रायल एंड एरर में हम क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर में हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं खुद से। पहले मैं p की जगह 1 पुट करके देखूंगा, या फिर मैं 0 से भी स्टार्ट कर सकता था, बट 0 पुट करने से तो नहीं आएगा, तो इसलिए मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सी अगर मैं p की जगह 1 पुट करता हूँ तो 5 इंटू 1 प्लस 2 ये कितना आया 7, तो ये तो 17 के इक्वल नहीं आया, सो वी विल नॉट बी टेकिंग p इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन नहीं है। देन वी विल पुट p इक्वल टू 2, हम p की जगह 2 पुट करेंगे, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू 5 प्लस 2 जा 10 प्लस 2, हाउ मच इट विल बी 12, सो दैट इज नॉट इक्वल टू 17। देखो 12 भी जो है वो 17 के इक्वल नहीं है, सो दैट मीन्स वी विल नॉट बी टेकिंग p इक्वल टू 2। सो नाउ वी विल बी पुटिंग p इक्वल टू 3, सो इट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, ओके 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, so 5 3 ja 15, 15 plus 2 17, so this time we are getting 17, so that means p equals to 3 is our answer। So this is how we will be using the trial and error method। Let us see first part of 8.2 question, 15% of 250, so this is what we will be calculating, 15% of 250, so it will be 15 divided by 100 multiply by 250, परसेंटेज की जगह 100 लेना है, ऑफ है तो मल्टीप्लाई, 0 to 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, सो 25 इंटू 3 इट विल बी 75 डिवाइडेड बाई 2। अब 75 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 37.5%, सॉरी 37.5 परसेंटेज नहीं, सिर्फ 37.5, या फिर तुम लिख सकते हो 37 1/2, इतना आंसर आएगा। ओके लेट्स सी दिस वन। हाँ ये एक बार देखते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करता हूँ पहले। सी इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेसेज आर इक्वल। देखो अगर हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सपोज दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल आई एम हैविंग, ओके, the bases angle are equal, the base angle means the angle related to base, this angle and this angle both are equal, so I am taking this one as x, मैं इसको भी x ले लेता हूँ और इसको भी x, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दिया हुआ है, the base angle are equal, the vertex angle is 40, जो ये ऊपर वाला vertex angle है ना, ये है हमारा 40 डिग्री। सो व्हाट आर द बेस एंगल्स, तो बेस एंगल्स फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हमने लेट किया लेट बेस एंगल्स इक्वल टू x। अब हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, उसमें क्या होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, दैट मीन्स x प्लस 40 विल बी इक्वल टू 180, सो 2x विल बी इक्वल टू 140। 140 क्यों हुआ, क्योंकि ये 40 इधर आके माइनस हो गया, तो 180 माइनस 40 140, सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच 140 डिवाइडेड बाय 2 70 डिग्री, सो दैट मीन्स बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल टू 70, दोनों एंगल 70 के इक्वल आएंगे। ओके लेट्स सी दिस वन ऑल्सो, टेक्स्ट बुक में 400 दिए सर, दैट विल बी
Okay, now see, Meeta saves how much seed saving? Seed saving 4,000 from her salary. देखो हम लोगों को उसकी टोटल सैलरी नहीं पता है, तो हम उसकी टोटल सैलरी एज्यूम कर लेते हैं, टोटल सैलरी को हम x एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब आउट ऑफ दिस x सी इज सेविंग 4,000 एंड दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी। ये जो 4,000 है ये उसकी टोटल सैलरी का कितना परसेंट है? 10%। दैट मीन्स अगर मैं 10% ऑफ टोटल सैलरी, 10% ऑफ हर सैलरी यानी कि 10% ऑफ x मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 4,000. So it will be 10 divided by 100 multiply by x will be equal to 4,000. So that means 0 to 0 cancel. We are having this 10 in division now. So x will be equal to 4,000 multiply by 10. Because something that is in division will come into multiplication. So x will be how much? 40,000. So this will be our answer. That means her total salary is 40,000. टोटल सैलरी 40,000 है, 40,000 में से हाउ मच सी इज सेविंग? 4,000 सी इज सेविंग। ओके, लेट्स सी दिस वन ऑल्सो। 3.3 थर्ड क्वेश्चन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन बार ग्राफ। तो ये जो है ना नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हुए हैं अलग अलग क्लासेज में कि 5th क्लास में 135 बच्चे हैं, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90, 10th में 80। तो इसको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ पे। एंड हाउ वुड यू चूज अ स्केल? देखो स्केल हम लोग ना 10 का या 20 का चूज कर लेंगे, ठीक है। देखो 10 या 20, क्योंकि 5 का तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 20 का करने पे चल जाएगा, ठीक है। या फिर 10 का करते हैं, तो 10 का स्केल चूज करते हैं। देखो पहले मैं एक बार ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माई y एक्सिस, दिस इज माई x एक्सिस। ओके, नाउ आई विल बी टेकिंग हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे लिखूँगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। then I will be taking 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ठीक है। एंड सी आई एम टेकिंग द स्केल 1 यूनिट, 1 यूनिट को मैं लेके चल रहा हूँ इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। मैं 1 यूनिट को 10 स्टूडेंट्स के इक्वल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में तुमसे पूछा हुआ है ना, दैट हाउ वुड यू चूज अ स्केल, व्हाट स्केल यू आर चूजिंग, यू विल बी राइटिंग 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ओके, नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट फॉर क्लास 5th हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर? 135। सो आई विल बी टेकिंग फर्स्ट फॉर क्लास 5th। मैं 5th क्लास के लिए पहले एक बार ग्राफ बनाऊंगा। सो आई विल बी टेकिंग इट अप टू 135, ठीक है। देखो 140 और 130 के बीच में मैंने लिया है ये। सो दिस वन इज फॉर क्लास 5th, ये आ गया है 5th क्लास के लिए। ओके, दीज आर द क्लासेज आई विल बी मेंशनिंग हियर, यहाँ पे क्लास मेंशन करेंगे। देन सेकेंड वन इज फॉर 6th क्लास। 6th क्लास में कितने हैं? 120। सो 6th क्लास में हम चूज करेंगे, दैट विल बी ये वाली क्लास हम चूज करेंगे यहाँ पे, और इसमें है 120। तो यहाँ पे ये आ गया है, दिस वन इज आवर क्लास 6th। ओके, और तुम चाहो तो इसके अंदर शेडिंग भी कर सकते हो, किसी में भी अगर तुम चाहो तो ऐसे शेड कर सकते हो। दिस इज फॉर 5th, दिस इज फॉर 6th, ऐसे शेड कर सकते हो। फिर ऐसे ही तुम 7th के लिए करोगे, ठीक है। अलग अलग कलर्स भी कर सकते हो, जैसे ये 5th का हो गया, ये 6th का हो गया, फिर 7th का करेंगे, 8th का, ऐसे बार ग्राफ बनेगा जिसमें जितना है वहाँ तक लेके जाना है। जैसे 6th में 120 बच्चे थे तो मैं इसको कहाँ तक लेके गया, इस वाले ग्राफ को 120 तक, 120। इसमें 135 है तो 135 तक लेके गया मैं, ठीक है। ऐसे तुम लोग स्केल लिखोगे, बिकॉज 1 यूनिट को मैंने कितना लिया है? 10, बिकॉज 10 का गैप आ रहा है यहाँ पे। तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स दैट आई हैव टेकन।
ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें क्वेश्चन है लास्ट में, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। अब ये तो यहाँ से भी पता लगता है, फिफ्थ क्लास इज हैविंग मैक्सिमम चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा बच्चे फिफ्थ क्लास में हैं और सबसे कम किस में हैं, टेंथ क्लास में, 18। ओके, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सिक्स्थ वालों का और एट्थ वालों का रेशियो निकालना है। सिक्स्थ में कितने हैं 120, एट्थ में कितने हैं 100। सो 120 अपॉन 100 यू विल बी टेकिंग, you will take Sir, here 120 सर आपका वॉइस बीच में कट हुआ था divided सर, और by एक बार बोलते 100, so it will be 0 to 0 cancel, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12. So what will be the ratio here? It will be 6 is to 5. This will be the ratio you will be getting. X equal to 2. हाँ, कोई भी तीन इक्वेशन बनानी है जिसमें x equal to 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो कैसे बनाएंगे। इफ़ आई टेक हियर, देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x इक्वल टू 2, और मुझे इसमें ना 3 इक्वेशंस या 4 इक्वेशन कितनी भी बना सकते हैं। देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनाता हूँ, आई विल बी टेकिंग, मैं इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2x इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 3x विल बी इक्वल टू 6। क्योंकि देखो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सोल्व करूंगा ना, मेरे पास आंसर कितना आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, इस साइड में भी 2 ऐड कर दो और उस साइड में भी 2 + 2 4, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 2। या फिर तुम माइनस कर सकते हो, x - 2 कर दो, इधर 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। तुम x + 5 कर दो, इधर कितना आएगा 5 + 2 7। तो ऐसे इक्वेशंस बनती हैं, कितनी भी बना सकते हो तुम लोग।